Satya, I'm going to ask you to unmute yourself. Unmute करें. Yeah, please tell us about your problems briefly. आपकी आवाज नहीं आ रही है. We can't hear you. This is Yeah, come a little closer. Please come a little closer. It's better. This is Satya Prasad. Have diabetes for over 20 years, and mostly I've been only managing by exercises, diet. I'm actually a vegetarian, so I eat vegetarian foods, and that's one of the problems. Like I don't have enough proteins, and because of which I have muscle loss, and now I think I'm getting a kind of weakness these days. Okay. The Okay. weakness is also there. So that So is what have you been graded as type 1 or type 2? type 2. Type 2. So in your body, the problem, and we are linking it with apana dosha, apana soma sthapana, you have a weak inhalation. The absorption and the assimilation of food in your body doesn't happen properly. And that is why we can correlate it with other issues like insulin resistance, like glucose intolerance, that happens when the absorption factor is weak. The absorption also leads to lesser energy formation or energy production in the body due to mitochondria insufficiency. If glucose doesn't get absorbed in the cells and tissues, the mitochondria will not be able to convert it into energy. So we did the world's first scientific research correlating Kumbhak with mitochondria health. And within 4 weeks of doing Kumbhak, the mitochondria health in terms of the density, in terms of the energy production, also in terms of the inflammatory markers in the body, we found very drastic path-breaking results. So Kumbhak gets established as the only method which can improve your mitochondria. Also, it will reduce the inflammatory markers in your body. Apart from that, you have apana dosh. Apana dosh fundamentally means the inhalation factor, inhalation and hold. The inhalation factor is weak in your body. The absorption is weak. The body is intolerant to many things like insulin and glucose. So, by Kumbhak is the actually key for improving the strength of inhalation or exhalation. It will not happen if you just inhale long or exhale long. The inhalation exhalation doesn't get enhanced or strength doesn't get enhanced. It get enhanced through Kumbhak, through hold, the hold factor. We will customize you for Apana dosha. We'll give you customized practice, and we'll also do we will tailor fit the whole Kumbhak module according to your problem. And you'll see that you'll be fine. Within 1 week, you'll feel more energy. Within 1 week, there will be a drastic change that you can see. Thank you, Swamiji. SL or SI Galcharji, do you suffer from diabetes? Would you like to, if I put you in spotlight, would you like to tell about yourself so that Swamiji can tell you the reason for your problem? SL Galchar, thumbs up कर दीजिए. हेलो. हाँ, ओके. अनम्यूट करें और अपने बारे में बताएं. आपका थोड़ा नेटवर्क स्ट्रेंथ लो है. हाँ, नेटवर्क मेरा लो है स्वामी जी. तो मेरा अभी फुट पेन बहुत है, मतलब मुझे पैरों में दर्द बहुत होता है. तो मतलब चलने में भी दिक्कत है, घर में घूमने में भी दिक्कत है. और ये हुआ है मुझे लास्ट 1 साल में. पहले मुझे पता ही नहीं था कि मुझे डायबिटीज है या नहीं. बट अभी सडनली मेरा 1 साल से फुट पेन होने लगा. तो फिर मैंने टेस्ट करवाया, तो मेरा जो HbA1 है वो 8.9 समथिंग आया. एंड मैं अभी एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहा हूँ.
आपके शरीर में एक चीज आप देखिए, अगर ऑब्जर्व करेंगे तो अगर आप सीढ़ियां चढ़ेंगे तो सांस फूलेगी। आपके शरीर का ना, इसे कहते हैं दक्षिण बल, जोर लगाने की क्षमता जो है वो वीक है। अगर आप कोई जोर वाला काम करेंगे, वजन उठाएंगे तो सांस फूलेगी। दूसरा, वायु दोष आया हुआ है आपको इस वक्त में, बहुत भयंकर वायु दोष है इस वक्त में शरीर में। वायु दोष का मतलब होता है आपके शरीर का जो प्रेशर इकोसिस्टम है वो बिगड़ा हुआ है। उस वायु दोष का असर ज्यादातर कमर से नीचे होता है। तो आयुर्वेद के टर्म्स बोले तो आप अभी गंभीर वात दोष की स्थिति में हैं। अगर शक्ति के टर्म्स में, स्ट्रेंथ के टर्म्स में बात करें तो दक्षिण बल आपका कमजोर है। दक्षिण बल का मतलब होता है सांस रोकने की क्षमता। कम से कम जितने ही आप लंबी इनहेलेशन कर सकते हैं, उसे 4 से 5 गुना सांस रोकने की क्षमता होनी चाहिए। तभी आप देखेंगे कि आप अभी जो डायबिटीज की कंडीशन है, तो आपको मालूम है एक चीज और है, उसे कहते हैं एंजाइटी का फीलिंग आता है। एड्रिनल फटीग कहते हैं इसको। तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी, जब भी शरीर खतरे में आता है तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होती है। उसकी वजह से भी ब्लड में शुगर ज्यादा देखने को मिलता है। दवाई देने के बाद भी वो इतना ज्यादा कम नहीं हो पाता। तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी या एड्रिनल फटीग के लिए सबसे पहली चीज जो है, बॉडी का टॉलरेंस बढ़ाना होता है। अगर टॉलरेंस बढ़ाएंगे तभी ये चीज में फायदा होगा, वरना तो दवाई से तो आप ग्लूकोज को कम करते जाएंगे और शरीर वापस ग्लूकोज बढ़ाता जाएगा। तो वो तो कोई उपाय नहीं है। तो टॉलरेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर आप वेट उठाते हैं 10 किलो का, तो टॉलरेट कैसे करते हैं? सांस रोक के ही उठाते हैं आप। तो सांस रोकने की क्षमता जो है ये बढ़ाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो वात दोष यानी प्रेशर इकोसिस्टम का गड़बड़ होना, वो भी कुंभक से ठीक होता है। आयुर्वेदिक सपोर्ट लिया जा सकता है, मगर वो इतना काम नहीं करते। अगर कुंभक के साथ में लिया जाए तो वो बहुत मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, दक्षिण बल कम है, जोर लगाने की क्षमता यानी सांस रोकने की क्षमता कम है। तीसरा, टॉलरेंस कम है, वो भी इसी के साथ में कोरिलेट होता है। तो तीनों ही कंडीशन में कुंभक का कोई ऑप्शन नहीं। बाकी आप बाहर से जो सपोर्ट लेना चाहें ले सकते हैं। नेचुरल सपोर्ट लेंगे तो लॉन्ग टर्म लेना चाहिए, केमिकल सपोर्ट लें तो शॉर्ट टर्म लेना चाहिए। Swamiji, we have people, two mothers who are looking for children who are in type 1 condition. तो एक दीपा जी हैं, वो थोड़ा परेशान भी हैं क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बोला ये इनक्योरेबल है। वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट इट? हमारे पास में तो क्योर के आपको टेस्टिमोनियल दे देंगे हम। इंसुलिन लेने वाले अब इंसुलिन लेना बंद कर दिया। पहली बात, बच्चों को टैग नहीं करना चाहिए कि उनको डायबिटीज है कि नहीं। ग्रोइंग एज में कभी भी आपको बच्चों को डायबिटीज या ऐसा कोई प्रॉब्लम टैग नहीं करना चाहिए। टिल द एज ऑफ 25, 25 साल तक कभी भी टैग नहीं करना चाहिए कि इसको ये प्रॉब्लम है। ग्रोइंग एज में बॉडी की ग्रोथ फैक्टर्स और उनका बनना बिगड़ना ये चलता रहता है। और टाइप 1 अगर बचपन में ही डिटेक्ट होता है तो इसको ठीक किया जा सकता है, खास करके प्यूबर्टी के टाइम और उसके विद इन 4 to 7 years के स्लॉट में हम शरीर के साथ में बहुत रिकवरी कर सकते हैं। बट देन इट विल नॉट हैपन थ्रू मेडिसिन। डॉक्टर कह रहा है ये ठीक नहीं होता, बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। उसने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा हुआ है, ठीक नहीं होता डॉट डॉट डॉट, ठीक नहीं होता मेडिसिन से। ऑब्वियसली मेडिसिन से ठीक नहीं होता। 100 साल में तो एक भी ठीक नहीं, 100 साल में एक भी डायबिटिक ठीक नहीं। और ये कौन ठीक करेगा? आपका शरीर ठीक करेगा। पता चलना चाहिए कि आपके शरीर में कौन सा फैक्टर वीक है, क्या चीज कमजोर हो गई। एक बात आप समझ जाइए, जितने लोग यहाँ पे हैं, भगवान भी आ जाए आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। स्टैम्प पेपर पे लिख लो, कौन करेगा ठीक? आपका शरीर। आयुर्वेद का पहला नियम है यथा बलम तथा चिकित्सा। आपके शरीर का जितना रिकवरी स्ट्रेंथ होगा उतना ही ठीक कर पाएगा। कुंभक रिकवरी के स्ट्रेंथ को बढ़ाने का तरीका है। तो बच्चों में तो हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट बहुत तेजी से आता है, बहुत जल्दी आता है और कंप्लीट रिकवरी भी हो सकती है। कुछ केसेस, बहुत कम केस हैं जिसमें कि ये पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज द डैमेज इज टू मच इन द बॉडी। अगर जेनेटिक भी है तो जेनेटिक
डिविएशन को हम कुंभक से ही रोक सकते हैं। हम क्रोमोसोमल डिफेक्ट ठीक करते हैं, हमारे पास लैब रिपोर्ट है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट कुंभक से ठीक होता है। तो अगर जेनेटिक भी है तो उसकी भी रिकवरी होगी। कितनी होगी वो डिपेंड करता है कितनी एग्रवेशन है या कितना डैमेज है बॉडी में। जितनी केमिकल दवाइयां लेंगे उतना रिकवर करना मुश्किल होता है, बिकॉज मेनली केमिकल दवाइयां आपको डैमेज कर रही हैं। जो ऑर्गन डैमेज हो रहा है डायबिटीज में, बॉडी तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करा के उस शुगर को बाहर फेंक देगा, मगर जब आप मेटफॉर्मिन खा रहे हैं, रोजीग्लिटजोन, पायग्लिटजोन खा रहे हैं, अकारबोज, है ना, ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ऐसा कुछ खाते हैं ना, तो आप वो जो ब्लड में ग्लूकोज उसको कहाँ धक्का देते हैं, कहाँ फेंकते हैं? कान से निकलता है, नाक से निकलता है, बाहर कैसे निकलता है? वो तो आपके ऑर्गन में जाता है। जो ब्लड का ग्लूकोज है वो तो टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में घुस जाता है, और इसी वजह से ऑर्गन डैमेज होता है। फिर कहते हैं न्यूरोपैथी हो गया जी, रेटिनोपैथी हो गया जी, किडनी डैमेज हो रहा है, लिवर डैमेज हो रहा है, हार्ट डैमेज हो रहा है। तो मेडिसिन खाने से हो रहा है ना आपका। अगर बॉडी का स्ट्रेंथ फैक्टर रिकवर कर लें, अब स्ट्रेंथ रिकवर करने का तरीका मेडिसिन तो है नहीं, फूड से भी आप स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकते अपनी बॉडी की। 80 साल का इंसान 80 साल तक भोजन किया तो सुपर ह्यूमन बन जाना चाहिए था। अगर स्ट्रेंथ बढ़ाता है फूड तो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाता। उम्र के साथ आपकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है शरीर की। तो अगर रीजेनरेटिव फैक्टर आप बॉडी में बढ़ा दें, है ना, रिकवरी का स्ट्रेंथ बढ़ा दें, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर दें, है ना, इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर दें, टॉलरेंस बढ़ा दें, तो ये शरीर रिकवर कर जाएगा। बच्चों में तो और जल्दी रिकवर कर। तो पहली बात, बच्चों को टैग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अब बॉडी आपको ठीक करेगा, दुनिया की में कोई ताकत आपको ठीक नहीं कर सकती। तो इसका बल फैक्टर, इसका रिकवरी का स्ट्रेंथ बढ़ाएं, और इसका कोई ऑप्शन नहीं। बाकी आप जो मर्जी सपोर्ट ले लो, जैसे मैंने बताया, लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेना है तो नेचुरल सपोर्ट, शॉर्ट टर्म लेना है तो केमिकल लीजिए। लॉन्ग टर्म केमिकल लेंगे तो ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। डायबिटीज बढ़ रही है और ये बढ़ती ही जाएगी अगर आप केमिकल से बॉडी को ट्रीट करने की कोशिश करें तो। हमारे बच्चे बच्चे डायबिटिक हो जाएंगे, और हो रहा है। कितने ही केसेस मेरे पास में आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। नॉट अ गुड सिचुएशन। आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। Srishti, you also want to ask a question. So, are you suffering from diabetes, Srishti? Mahavir ji, I'll come to you. जरा थोड़ा कमीज पहन ले. Wear a shirt, please. So, Srishti, unmute. I'm asking you to unmute yourself. अपने आप को unmute करें और पूछें. बोलिए. Yes, sir. Sir, I am type 1 diabetic from past 9 years. Sir, I am taking insulin 4 times a day. तो सर उसी के लिए बात करनी। पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा आपकी बॉडी की प्रॉब्लम क्या है, इंसुलिन क्यों लेना पड़ता है। आपके पैनक्रियास से जो बीटा सेल्स हैं जिससे इंसुलिन निकलता है, वहां पे दो प्रॉब्लम है। आपका बॉडी कफ प्रकृति का है, यानी कफ प्रकृति का मतलब होता है जैसे कि मलाई जो है वो कहीं जम जाती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी में आपके शरीर में चीजें बह नहीं पाती, फ्लो नहीं कर पाती। तो एक तरीके से ब्लॉक है पैनक्रियास कफ दोष के कारण। दूसरा ये है पिट्यूटरी इंसफिशियंसी है आपके। पिट्यूटरी इंसफिशियंसी का मतलब देखिए, इंसुलिन आपके पैनक्रियास से निकलेगा कब, जब पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आपके ब्रेन के अंदर पीछे की तरफ में हाइपोथैलेमस के ऊपर छोटा मगज है उसके साथ में होता है, वो इंसुलिन रिलीजिंग हार्मोन निकालता है जिससे पैनक्रियास इंसुलिन निकालता है। तो दो चीज, पैनक्रियास से इंसुलिन प्रॉपरली नहीं निकल रहा, दूसरी चीज आपका पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल नहीं दे पा रहा, क्योंकि उसको सिग्नल का डिविएशन हो रहा है। बॉडी का फैट जो है वहां पे एक और हार्मोन होता है, इसे लेप्टिन कहते हैं, लेप्टिन। लेप्टिन सिग्नलिंग ठीक से नहीं हो पा रही है, या पिट्यूटरी कैल्सिफिकेशन हुआ पड़ा है। आपकी बॉडी में स्टिफनेस रहती है ना। तो स्टिफनेस वाला पार्ट क्यों रहती है, क्योंकि जब भी कोई चीज मूव करना नहीं कर पाएगी तो मान के चलिए कि वहां पे रुकावट है। रुकावट स्टिफनेस है, रुकावट पेन भी है। दो चीज समझिए, रुकावट स्टिफनेस है, रुकावट पेन भी है, इसलिए बॉडी में पेन भी होता है।
सुबह अगर उठेंगे तो बॉडी स्टिफ रहेगी तो पेन होगा। जैसे जैसे गर्म होगी बॉडी, उसकी स्टिफनेस कम होगी, पेन कम हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन ठीक हो सकता है पिट्यूटरी का। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ट्रिगर सही देगा बॉडी में। अगर कुंभक करेंगे तो आप देखेंगे फैट का यूटिलाइजेशन, क्योंकि मेटाबॉलिक हीट बढ़ाता है कुंभक, फैट का यूटिलाइजेशन भी होगा। कुछ समय के बाद में आप अपना वेट भी देखेंगे कम हो जाएगा। दूसरा, स्टेम सेल्स होते हैं आपके शरीर में, जिसको अगर ट्रिगर दिया जाए तो बीटा सेल्स को वो दोबारा से रिजुवनेट कर सकता है। कुंभक वो एपिजेनेटिक ट्रिगर है जिससे कि आपके बीटा सेल्स रिवाइव हो सकता है। इसीलिए कुंभक करने के बाद विद इन 10 डेज हमने देखे हैं लोगों की इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ठीक है, कुंभक करते ही आपका बॉडी भी लचीला हो जाएगा, कुंभक करते ही आपका मेटाबॉलिक हीट बढ़ेगा, तो फिर आप देखेंगे मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। और डायबिटीज प्राइमरी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही है, तो मेटाबॉलिक इंप्रूवमेंट के लिए आपको कुंभक करना पड़ेगा। हम्म। Swamiji, we also have Mahavir Rao with us. He's also been diagnosed with type 1 एंड ये बता रहे हैं इंसुलिन लेना शुरू किया बट अभी मसल लॉस, टिश्यू लॉस हो रहा है, वीकनेस आ रही है। आप हमारे डायबिटीज प्रोग्राम के नाम को समझिए। सोम स्थापना जब हम कहते हैं तो बेसिकली बॉडी ना इंजन की तरह होता है, उसकी इंटीग्रिटी खराब हो जाएगी तो वो फ्यूल बर्बाद करेगा ना। पेट्रोल डीजल जिसकी भी गाड़ी है वो ज्यादा यूज होगा, कम काम होगा। तो अभी सिचुएशन ऐसे ही है महावीर जी, सिचुएशन ऐसे। व्यान दोष है आपको, व्यान दोष आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपकी एक्सलेशन पे कंट्रोल नहीं, आराम नहीं है शरीर के अंदर, माइंड के अंदर आराम नहीं, दिमाग जो है वो लगातार लगातार चलता रहता है। तो ये दिखाता है कि फ्लक्चुएशन बॉडी में, इसी को वात दोष भी कहते हैं, प्रेशर नमस्कार फ्लक्चुएशन सर। हो। हाँ, तो स्वामी जी मेरे को 7 साल से डायबिटीज है। इतने दिन में टेबलेट ले रहा था। अभी डॉक्टर को जस्ट एक 1 वीक पहले मैंने डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने डायग्नोस दोबारा किया तो उन्होंने बोला कि आपको टाइप 1 है। मैंने उनको बोला कि अगर मेरे मेरे को टाइप 1 है तो मैं 7 साल से सिर्फ ये टेबलेट क्यों ले रहा हूँ। मेरे और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सिर्फ ये अभी जाके वीकनेस आने लगी और मसल लॉस हो गए। 75 से 55 किलो वेट हो गया। वो आपके अंदर, वही मैं बता रहा हूं आपको, व्यान दोष कहते हैं। हम्म। व्यान दोष है। व्यान दोष आपको टाइप 1 टाइप 2 से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात तो ये। आप इसे ब्लड शुगर, ब्लड में शुगर नाप के इसको कुछ बोल देते हैं कि टाइप 1 है या टाइप 2 है, या फिर थोड़े और टेस्ट करके बोलते हैं। बट देन आपके अंदर जो मूल, अगर उससे भी मान लीजिए कि चलिए टाइप 1 है, उससे ठीक होना चाहिए ना फिर किसी तरीके से। टैग करने से तो ठीक होगा नहीं। पहले टाइप 2 टैग किया, आप टाइप 1 टैग कर दिया, कि कुछ भी टैग करना है उससे फायदा क्या क्या, ठीक तो होगा नहीं। आप इंसुलिन लो तो ठीक हो जाओगे क्या? और सिचुएशन खराब हो जाएगी, स्पाइकिंग होगी ब्लड शुगर की, खूब इंसुलिन की वजह से होती है, ऊपर नीचे जाएगा। आपकी तो प्रकृति है जहां पे कोई भी चीज ऊपर नीचे जाती है। आपने देखा होगा आपकी लाइफ में कोई चीज इनिशियली काम करती है, उसके बाद काम करना बंद कर देती है। इसे व्यान दोष कहते हैं। यानी आप, और ये चीज आपके माइंड में भी इम्पैक्ट देखने को आपको मिलेगा कि बहुत फ्लक्चुएशन, थॉट प्रोसेस बहुत लगातार चलेंगे, रुक नहीं सकेंगे, कंट्रोल नहीं होगा, आराम नहीं होगा शरीर के अंदर, है ना। तो वही मैं बता रहा था, बॉडी का पूरा इंटीग्रिटी जिसे कहते हैं ना, जो व्यान फैक्टर होता है एक्सेलेशन के साथ में, इसको समझिए। एक्सेलेशन पे कितना कंट्रोल, एक्सेलेशन पे कंट्रोल नहीं है तो व्यान दोष है। एक्सेलेशन जो है ना, बॉडी का स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। वो खराब हो गया तो एकदम से आपने मसल लॉस करना बॉडी में शुरू हो गया। तो उसको दोबारा से स्थापित करेंगे तो ये रोक पाएंगे। इंसुलिन से तो ठीक होगा नहीं, या गोली से अभी तक ठीक नहीं हुआ, कहते 100 साल में तो किसी का ठीक नहीं। तो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के लिए अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है कि इंसुलिन बॉडी में बनी नहीं रही, ज्यादातर लोगों को तो हाइपर इंसुलिनीमिया होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। ज्यादातर लोगों को जिनको डायबिटीज होता है उसमें ऐसा थोड़ी है कि इंसुलिन बनना बंद हो गया। इंसुलिन
जा ही नहीं रहा है लिवर के अंदर, या टिश्यू के अंदर इंसुलिन और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन जा नहीं पा रहा, तो ज्यादातर केसेस में हाइपर इंसुलिनीमिया, और ऊपर से इंसुलिन डाल दो तो सत्यानाश हो जाएगा शरीर का। अब जो भी कंडीशन है, मगर मैंने आपको प्रॉब्लम बताया। अगर आप टेस्ट करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे अपने ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि आपका एक्सलेशन पे कंट्रोल नहीं है। वो कंट्रोल लेके आएंगे, तब आप देखेंगे कि एक्सलेशन पे अगर कंट्रोल नहीं है, तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे केसेस में फ्लक्चुएशन होता है, कभी शुगर लेवल बहुत हाई हो जाए, कभी बहुत कम हो जाएगा, ऐसा होता है ना। और शुगर लेवल हाई हो इतना खतरनाक नहीं होता, शुगर लेवल लो हो गया तो फिर बहुत खतरनाक है ना। इसको कंट्रोल करना, ये व्यान दोष कहलाता है, इसको कंट्रोल करना है। व्यान फैक्टर को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको देखिए एकदम से आपको इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर अगर लेना पड़ा शॉर्ट टर्म ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है ना। आज तो बोल दिया इंसुलिन लेने के लिए, मगर इंसुलिन से ठीक हो जाएगा क्या? शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैनेज करना चाहते तो ले सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म तो आपको अपने शरीर को ही जो वीक फैक्टर है उसी को ठीक करना पड़ेगा। Swamiji, we have Dhananjay ji with us. His diabetes came later, but he's suffering from lower motor neuron condition and Horn cell disease. Okay, from 2024. इनको राइट लेग में प्रॉब्लम है, लेफ्ट लेग में भी होता है, सो बट अभी ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आ रहा है, सो आई सस्पेक्ट ही इज फ्रॉम कैंडिडेट फॉर एसी. However, he has asked this question over here. Can he be helped? Yeah. See, this condition usually happens when you get into a situation of autoimmune disorder. अब डायबिटीज में भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का एक बड़ा फैक्टर है जो कि हम कंसिडर नहीं कर रहे, उस तरह उसमें देख नहीं रहे। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कब होता है? जब शरीर के अंदर कोई खतरा आता है तो आपकी इम्यूनिटी जो है एक्टिवेट होती है, इमरजेंसी स्विच ऑन होता है। लेकिन बार बार अगर खतरा डालें तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। तो एक तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या ऐसा सिंड्रोम जो है वो पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत ड्रास्टिकली बढ़ रहा है, और हर केस के साथ में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा। डायबिटीज में भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, हार्ट डिजीज में भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, थायराइड में भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, रूमेटाइड विच इज अ काइंड ऑफ आर्थराइटिस, है ना। मोटर न्यूरॉन डिजीज अगर आप कह रहे हैं तो उसमें भी हम देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं ऑटोइम्यून सिंड्रोम के साथ में जुड़ा हुआ। ना ऑटोइम्यून सिंड्रोम इज लाइक योर इमरजेंसी स्विच गेट्स ऑन, बट व्हेन योर इमरजेंसी स्विच गेट्स ऑन, द बॉडी ट्राइज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ बाय ट्रिगरिंग द हार्ट रेट तेज कर देगा और ब्लड में शुगर ज्यादा डाल देगा। तो ब्लड शुगर की या डायबिटीज नहीं है, वो इम्यून प्रॉब्लम है, बॉडी खतरे में आ रहा है, टॉलरेंस कम हो गया। तो टॉलरेंस जब बढ़ा देंगे तो ऑटोइम्यून सिंड्रोम ठीक हो जाता है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर देंगे तो मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, इम्यूनिटी बैलेंस होगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा। तो कुंभक से जैसे ही हम मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करते हैं, इम्यून बैलेंस आ जाता है। बट आपका जो कंडीशन है ना, वो न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम के साथ में शुरू हुई, तो आप यहाँ नंबर छोड़ दीजिए, आपको एक अष्टांग चिकित्सा करके एक प्रोग्राम आता है, वहां पे डायरेक्ट करेंगे। Prashant ji, you have a question. Please type your question or I'll ask you to unmute. एक तो आपका वीडियो ऑफ है, तो जरा वीडियो ऑन करके पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। सर नेटवर्क इश्यू है मेरे को यहाँ हाँ, पे। बताइए बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आफ्टर कोविड मैंने रैंडम शुगर टेस्ट किया था, तब शुगर डिटेक्ट हुआ था मुझे, और अभी लास्ट मंथ में चेक किया था तो 270 रैंडम मिला था शुगर। और अभी क्या है, मुझे कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन लास्ट 1-2 साल से मुझे गैस, एंजाइटी और डाइजेशन इश्यू हो रहा है, स्टूल प्रॉपरली बनता नहीं है और मसल लॉस भी हो रहे हैं। तो इसको मैं कवर कर पाऊंगा क्या? क्योंकि देखो, मैंने आपका पहली बात, रैंडम शुगर कोई डायबिटीज टैग नहीं करना चाहिए, रैंडम शुगर पता लगा के। दूसरी बात, इफ योर बॉडी इज ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम एनी अदर प्रॉब्लम,
what is the energy through which it will recover? It is sugar only. So when the body is in a recovery process from some kind of a problem that is happening within your body, the sugar level will be high. But that is not diabetes. It's a recovery process of the body. दूसरी बात ये कि अगर कोविड के बाद में देखिए आपको जो एग्जैक्टली प्रॉब्लम है वो दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि आपको एंजाइटी इश्यूज कोई मैंने एक और टर्म दिया जो कि ऑनलाइन आपको मिल जाएगा. यू कैन टाइप इट ऑनलाइन एंड फाइंड आउट एड्रिनल ओवर एक्टिविटी. ठीक है ना. वो एंजाइटी इश्यूज के कारण और दूसरा एंजाइटी के कारण ही डाइजेशन का इशू आता. डाइजेशन इशू जो है वो एंजाइटी के साथ में जुड़ा हुआ है. सो इफ यू इंप्रूव योर डाइजेस्टिव फैक्टर और इफ यू वुड हैव डन इट बिफोर, होता क्या है कि बॉडी ना sometimes it takes a 6 month to 1 year gap or 1 year period to actually recover from a problem. But within that period, if you test yourself for sugar level, then you will be tagged diabetes. वो ठीक हो जाता 6 महीने में. मगर आप दवाई खाना शुरू किया तो अब रिकवरी उसका मुश्किल हो जाए. So if you see the diagnostic ecosystem that we have at this point of time, it is not that robust. ये आपके दिमाग में भरा गया है कि ये एक भी बीमारी तो ठीक नहीं हुई 100 साल में. You should be asking the right question. And the question mark with the current diagnostic ecosystem is also there. क्योंकि उससे डायग्नोस करके कुछ भी ठीक नहीं होता. Apart from infection, 20% of total disease are infectious and 80% are non-infectious or chronic. Chronic disease में तो एक भी ठीक नहीं होता. In fact, the episodes of all chronic disease are increasing in the world. So we are not able to find out why this is happening to this body. Why sugar level is increased. शुगर लेवल बढ़ गया तो डायबिटीज स्टार्ट हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो टॉलरेंस नीड्स टू बी एनहांस्ड. टॉलरेंस जैसे मैंने बताया कुंभक करके टॉलरेंस बढ़ जाएगा. एंजाइटी विल गो अवे. डाइजेस्टिव प्रॉब्लम विल बी सॉल्व एंड यू विल सी शुगर लेवल पहले तो आप अभी मैं बोल नहीं सकता कि आप ट्रैक मत करो, मगर आइडियली दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डिफिकल्टी इन दिस बॉडी. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जितने भी यहाँ लोग हैं उनको समझना चाहिए. इफ योर शुगर लेवल फ्लक्चुएट्स फ्रॉम 500 and comes down to 50 and there is no problem with you, and there is another person जिसका शुगर लेवल 200 पहुंचता है और नीचे 80 पहुंचता है तो बेड पे आ जाता है. हु इज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन? जिसका टॉलरेंस रेंज बहुत ज्यादा है, इजंट इट? और हम उसे स्टैंडर्ड में डालना चाह रहे हैं, एक लाइन पे डालना चाह रहे हैं. वी आर डिक्रीजिंग द टॉलरेंस ऑफ द होल ह्यूमैनिटी. कुंभक विल इंप्रूव द और इंक्रीज द टॉलरेंस. तो आपको अभी का जो भी शुगर लेवल है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला, आगे चल के भी नहीं आने वाला. तो टॉलरेंस आप बढ़ाओ. डोंट ट्राई टू फिक्स योरसेल्फ. है ना, हर मैजेस्टी के लाइन में फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं सभी. ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन से निकले हैं ना, तो आपको वो 100, 110, 90 इसके बीच में फ्लक्चुएट करे तो चलेगा. 120/80 ब्लड प्रेशर तो चलेगा. ऊपर गया तो बीमार, नीचे गए तो बीमार. व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमंस वी हैव बिकम. आपका शुगर लेवल 500 जाए, 50 जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. दैट इज व्हाट कुंभक विल गिव यू. दैट इज व्हाट कुंभक विल डू एंड नथिंग एल्स कैन डू दिस. Swamiji, this is a question. Is there mitochondria in the bone tissues? I think this comes from a gentleman who's very keen on joining the program, but अभी फ्रैक्चर है, उनको खड़े होने में दिक्कत होती है. फ्रैक्चर जुड़ जाएगा ना आपका जब आपका रीजनरेटिव फैक्टर बढ़ेगा. कुंभक से रीजनरेशन बढ़ता. अब माइटोकॉन्ड्रिया बोन टिश्यू में होता है. सभी टिश्यू को काम करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ही काम कर. सभी टिश्यूज में माइटोकॉन्ड्रिया होगा तभी तो काम करेगा. एनर्जी तो वहीं से प्रोडक्शन होता है ना. सबसे ज्यादा हार्ट में होता है, मसल्स में ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी, क्योंकि उसको लगातार काम करना है तो फिर डेंसिटी एंड रिप्लेसमेंट ज्यादा होता है. कमाल की बात है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट एन ऑर्गेनेल विच इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सेल. ये एक बैक्टीरिया के तरीके से जो बाहर से आया.
हमारे पार्ट नहीं है, मगर वो बढ़ता भी है, डिफ्रेंशिएट होते हैं, डेंसिटी उसकी कम ज्यादा हो सकती है, डेंसिटी उसकी ज्यादा कुंभक करने से होती है। ठीक है ना? तो आपका रीजनरेटिव फैक्टर बढ़ेगा, क्योंकि रीजनरेशन के लिए एनर्जी भी चाहिए और दूसरा मूवमेंट भी चाहिए, डायनामिज्म भी चाहिए, जिसे बात कहते हैं। प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर में काम होता है इस बॉडी के अंदर। प्रेशर वात होता है, टेम्परेचर प्रेशर से ही बनता। पित्त और वात पित्त मिलकर कफ का निदान करते हैं या फिर कफ मैनेजमेंट करते हैं। वात पित्त कफ, ये आयुर्वेद का नियम। उसमें से किंग कौन है? कुंभक। जो प्रेशर से मैनेज करता है कुंभक, वो किंग है। उसी से थर्मल इकोसिस्टम भी मैनेज होता है, टेम्परेचर भी मैनेज होता है, और ये दोनों मिलेंगे तो रीजनरेटिव फैक्टर को बढ़ाएंगे, कफ का निदान करेंगे, यानी उसको यूज करेंगे, मटेरियल को यूज करेंगे, फूड को यूज करेंगे। तो कुंभक करने से आपका रिकवरी भी जल्दी होगा। Swamiji, one last question. Can less carbohydrate diet, because पूरी दुनिया में ये प्रोटीन वर्सेस कार्बोहाइड्रेट चलता है, पर्टिकुलरली डायबिटीज, किसी ने एक और ग्रुप में पूछा था कि क्या शुगर, कैंसर वालों के लिए शुगर हानिकारक होता है? सो कैन लेस कार्बोहाइड्रेट डाइट हेल्प इन डायबिटीज रिवर्सल? नो, नॉट एट ऑल। इससे डायबिटीज रिवर्सल का कोई लेना देना नहीं। इफ यू वांट टू लोअर डाउन द शुगर लेवल इन योर ब्लड, दैट में हेल्प, मगर डायबिटीज रिवर्सल का लो कार्ब डाइट से कोई मतलब। दूसरी बात, ह्यूमन बॉडी इज मेड फॉर कार्ब डाइट, इट इज डिजाइंड फॉर कार्ब डाइट। अगर कार्बोहाइड्रेट ही आप ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे और कम कार्ब करके आप सोचते हैं कि ज्यादा प्रोटीन खा के आप ज्यादा, और किसी ने सबसे पहला प्रश्न उनका था कि भाई मैं तो वेजिटेरियन, तो देर आर एविडेंसेस कि वेजिटेरियन लोग कभी इस तरीके से उनको डायबिटीज नहीं हुआ या प्रोटीन की कमी नहीं हुई। बट इफ योर बॉडी विल, देखिए ज्यादातर प्रोटीन तो आपका बॉडी बनाता है। व्हाट प्रोटीन यू गिव फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी डजंट एक्सेप्ट दैट, उसको लेता ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल तो आपका बॉडी बनाता है। प्लांट किंगडम में कोलेस्ट्रॉल है कहां पे? प्रोटीन तो आपका बॉडी बनाता है। बाहर से जो प्रोटीन देंगे वो बॉडी बिल्कुल भी नहीं लेता, यूज नहीं करता, उसको ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड्स में और उसके बाद में वापस चेंज बनाता है। तो कार्ब डाइट का डाइजेस्टिव फैक्टर, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, दवाई तो नहीं कर पाएगी वो। कार्ब डाइट से तो आपका स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा। तो डाइट को आप रेगुलेट करके बेसिकली आप तो अपने जीवन को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। हम यही कहते हैं, कुंभक करके आप उसको यूटिलाइज करने की कैपेसिटी अगर अपने शरीर में बढ़ा दें, मेटाबॉलिज्म बढ़ा दें, तो क्या होगा? आप वो खा पाएंगे। कई लोगों ने आम खाए कुंभक करके, आम का स्वाद ले रहे हैं हाँ, फल खा रहे हैं, मीठे फल। तो आपको ऐसा बनाना है अपने सिस्टम को कि वो किसी भी चीज को यूटिलाइज कर सके, अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, मेटाबोलाइज कर सके, एसिमुलेट कर सके। ये काम कुंभक कर रहा है, हम यहां पे काम कर रहे हैं। Thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions during the diagnosis. So that is it from us right now. Prashant, leave your number. Anyone else who still has questions, etc., leave your number so that our team can get in touch with you tomorrow. Give us a little time. We will post the recording of the webinar as well as question and answer session in the WhatsApp group. And we look forward to your presence in the program and become an example for the world to come out of diabetes without using medicine, without using a lot of other things that you have used, but with Kumbhak, the body's natural strength building system. Thank you.